Yes, good afternoon, student. Very few students have joined now. Harshraj, 9A, board is clear or not? हर्षराज बेटा, बोर्ड क्लियर है? यस मैम, हल्का हल्का। मतलब कि ब्लर आ रहा है थोड़ा, तो वो वेबकैम थोड़ा सा तो ये रहेगा ही। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये आपका दिख रहा है ना? फ्रेंच यस रेवोल्यूशन। और ये काउजेस, मैम। यस मैम। ठीक है, सम काउजेस आर गिवन। टाइम सबको नहीं पता है? 1 मिनट बाकी है, हम ज्वाइन पहले कर लिए नहीं। क्लास उधर ओवर नहीं हुआ होगा, है ना? ओके, आई एम वेटिंग। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसके पहले कौन सा पीरियड हो रहा था? तुम लोग का तो अभी से ही शुरू होता है ना? सो वी आर डिस्कसिंग what discussion is going on in class? I have already taken your class also today. You are already having offline classes in 4th period. What Yes, topics ma'am. what topics were discussed there? We are discussing French Revolution. सबको व्हाइट बोर्ड क्लियर है ना सबको? देखो Yes, सब। ma'am. हाँ, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो दिख रहा है ना कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक है। मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, रोल ऑफ मिडिल क्लास एंड इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। रोल ऑफ मिडिल क्लास पर हम लोग आज ज्यादा जोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाकी कुछ जो है हम लोग बहुत हद तक डिस्कस कर लिए, उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, इज इट ओके और नॉट? So we are discussing French Revolution. Can anyone tell me what do you mean by revolution? Revolution क्या है? What is revolution? I have already discussed it in class. What is revolution? Anyone? A complete change in the social and economic condition. Yes.
Complete change means revolution. Revolution refers to large scale changes. Large scale changes which may result in complete changes in economic conditions, social conditions, society, administration, political changes, etc. ठीक है ना? So French Revolution also show about the complete changes of French society and administration from monarchy to constitutional government. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया था एब्सोल्यूट मोनार्की से पहले, और बाद में आपको वो बहुत सारे डेमोक्रेटिक पॉलिसीज वगैरह भी इम्प्लीमेंट किए गए. सो कैन यू टेल मी व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन क्लास कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन. व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन? Anyone? Several causes are there, and in class I have already given questions after discussion. You have written some causes there. In how many parts French society was divided during the time of revolution? Yes. In how many parts? Yes. What is given to the three level of society? What was the name? What were the name of these three section of society? Society was divided into three different states. And these states shows or reflect the economic and social conditions of French society during that period. ठीक है ना? आपका उस समय का 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी का क्या रूपरेखा था, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस था, वो सब पता चलता है हम लोगों को. थ्री डिफरेंट states of French society. Society was divided into three different states: first state, second state, and third state. Can you name which state is most privileged state of society? First and second state. Hierarchy and nobility. Yes, first state and second state have got maximum privileges. Which state have got or have taken maximum pressure of taxation? First and second. Maximum, I am asking. Third state. Maximum Third pressure state. of, yes, थर्ड स्टेट के ऊपर ही आपका प्रेशर ऑफ टैक्सेशन, बर्डन ऑफ टैक्सेशन मैक्सिमम था, और बाकी दोनों स्टेट जो था वो प्रिविलेज्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी था. फर्स्ट स्टेट में क्लेयर्गी को रखते हैं, चर्च, एंड सेकेंड स्टेट में आपका नोबेलिटी आता है. ये दोनों जो था प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, और थर्ड स्टेट जो था वो कॉमन पीपल का था, जिसमें स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, लायर्स, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, all were the part of third states, and maximum pressure of taxation were imposed on third state of society. So this may one of the major cause of, लगता है ना ये देखकर, division of society that reflects social condition of that period, economic condition of that period. And अब थर्ड स्टेट में आपका लैंडलेस लेबरर्स भी हैं, वर्कर भी हैं, और उनके ऊपर भी प्रेशर ऑफ टैक्सेशन मैक्सिमम है. तो ये शो करता है कि दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. कैन यू टेल मी व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? इमीडिएट कॉज क्या था? क्यों इतना लोग मतलब रेवोल्यूशन आउटब्रेक हो गया? इमीडिएट कॉज क्या था? Empty treasury. Yes, empty treasury, and which leads to The tax. Empty treasury, which create the conditions of extra burden of taxes over third state. And for that, Louis XVI called a meeting
मीटिंग कहाँ होता था भाई आपका? लुईस Versailles. हाँ वर्साइल में, लेकिन उसको क्या कहते थे, मतलब कहाँ पे मीटिंग कॉल किया था? State General. हाँ यस, स्टेट जनरल। और वहां पे एक मीटिंग कॉल किया गया और उस मीटिंग में जो वन स्टेट कैन गिव वन वोट, इस पर लोग अपोज किए थे। तो ये तो था आपका एम्प्टी ट्रेजरी और उसके बाद इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ टैक्सेशन। और इमीडिएट कॉज में क्या था? और क्या था एक जो इमीडिएट कॉज हुआ? प्राइस राइज ऑफ ब्रेड था ना ये। और सिर्फ प्राइस राइज ही नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया कि 2 घंटे 4 घंटे क्यू में खड़े होने के बाद राशन शॉप बंद कर दिए गए और बोल दिया गया कि खत्म हो गया। मतलब हाई प्राइस में भी कॉमन लोगों को नहीं मिला और उसका ब्लैक मार्केटिंग वगैरह का इशू आ गया। तब लोग एकदम चढ़ाई ही कर दिए, है ना, पूरा सब तरफ रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हो गया। So in class we have already discussed about the outbreak of the revolution. Louis XVI had to increase taxes for fulfilling their empty treasury or for satisfying the needs of their generals. ठीक है ना? स्टेट जनरल में मीटिंग कॉल किया गया आपका 1614 में ऑन 5 मई, सॉरी स्टेट जनरल में मीटिंग कॉल किया गया 5 मई 1789 में। इसके पहले जो मीटिंग था वो 1614 में हुआ था। और ये मीटिंग में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया। फर्स्ट 2 स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, 300 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए, जो आपका वो सारे डेलीगेट्स जो थे वो वर्साइल के हॉल में बैठ गए आमने सामने चेयर पर, और थर्ड स्टेट के जो कॉमन मैन थे वो पीछे खड़े हो गए। इनमें से 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। यहाँ पर आपको दिया गया क्या प्रॉब्लम डिस्कस किया गया कि टैक्स को बढ़ाना है, ये आपका रिजोल्यूशन रखा गया तीनों स्टेट के सामने। और उसके बाद अभी तक का जो सिस्टम था उसमें क्या था कि 1 स्टेट कैन वोट, कैन कास्ट 1 वोट। तब जब ये सिस्टम आया तो थर्ड स्टेट विच इज जनरली comprises of influential people, lawyer, educated masses, aware people, ठीक है ना, traders of that time, philosopher and thinkers of that time, वो 1 state can cast 1 vote पर रिफ्यूज कर गए। उनका डिमांड था कि ईच मेंबर एटलीस्ट ईच रिप्रेजेंटेटिव कैन कास्ट 1 वोट, और इस डिमांड को लुईस 16 ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वैसा करते तो ये कॉमन पीपल जो थर्ड स्टेट के थे वो 600 थे, वो वोटिंग में आगे हो जाते। अगर 1 स्टेट 1 वोट कास्ट होता तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट प्रिविलेज्ड क्लास थे, वो आपका लुईस 16 के फेवर में वोटिंग करते, जिसको कि ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जब इनके डिमांड को 1% कैन कास्ट 1 वोट को नहीं माना गया तो क्या हुआ, जब वो रिफ्यूज किए तो ये लोग वहां से वॉकआउट कर दिए। कौन लोग वॉकआउट किया? Third state. Yes, Third state. was determined to continue the same practice, but the member of third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have 1 vote. इनका यही डिमांड था। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book Social Contract. These the members of third states, which comprises lawyer, educationist, they were inspired by the book of Rousseau, Social Contract, and on the basis of that book they were aware about their rights and demanded 1 person 1 vote, demanded for casting 1 vote or for giving the rights to cast vote on the basis of 1 person 1 vote, 1 member 1 vote. That was refused by Louis XVI, and this after rejection of this proposal, member of the third state walked out of the assembly in protest. जब उनकी बात को नहीं माना गया
तो प्रोटेस्ट के तहत मेंबर्स जो थे असेंबली से वॉकआउट कर गए और ये बाहर आकर असेंबल होकर डिसाइड किए, फिर से ये मीटिंग किए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. On 20th June, they assembled in the hall. ये तो था आपका 5 मई का बात। उसके बाद वो आपस में जगह जगह मीटिंग किए, लोगों को संबोधित किए, उनके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताएं, उनका जो कुछ भी अवेयरनेस था, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डेमोक्रेटिक सेटअप, इसके बारे में चर्चा हुई मीटिंग कर करके। और बाद में वो सब मिले कहाँ, फिर से असेंबल हुए 20 जून को टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्साइल में वो फिर आपस में मिले, मीटिंग किए। एंड यहाँ पर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज ए नेशनल असेंबली, अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली के रूप में डिक्लेयर किया और एक शपथ लिया, दे स्वर not to disperse till they had drafted the constitution for France. यहाँ इन्होंने निश्चित किया, डिटरमाइंड हुए कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि वो फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना नहीं लेते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहाँ पे प्रिविलेजेस, पावर, राइट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रेफर करेगा। तो इस तरीके से ये लोग, ये ग्रुप जो पढ़ा लिखा ग्रुप था, जो मिडिल क्लास था, उन लोगों ने वहां पर एक मीटिंग की, असेंबल हुए और ये ओथ लिया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन नहीं जाएगा वो वहां से नहीं हिलेंगे। और उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। इनका जो मेन लीडर था वो मीराबाऊ था और अभी सेसेस था। एक जो था वो नोबेल फैमिली से बिलोंग करता था और दूसरा जो था प्रिस्ट था। और ये लोग सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में थे। प्रिविलेज सोसाइटी के होने के बावजूद भी इनके मन में कॉमन लोगों के लिए फीलिंग थी और इन्होंने उनका हेल्प करने के लिए उन सबको असेंबल किया। अपने लीडरशिप में रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. जैसे वो पृष्ठ था, उसने तो एक लिख ही दिया था, एक अपना घोषणा ही पत्र, पंपलेट ही छपवा दिया था थर्ड स्टेट, जिसमें बताया गया कि कैसे थर्ड स्टेट जो है वो डे बाय डे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो रहा है और कैसे उसको क्या क्या राइट्स होने चाहिए। तो इन लोगों ने पावरफुल स्पीचेस दिया, लोगों को मोबिलाइज किया, उनके राइट्स के प्रति जागरूक किया और इस तरीके से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। इन वन हैंड the National Assembly was busy at Versailles drafting a constituent. The rest of France seethed with turmoil. बाकी जो ग्रुप था फ्रांस का वो एकदम बेचैनी में, जैसे कि हम पहले भी बता चुके थे, women's were not allowed, landless peasants were not allowed to enter in the meeting, जो मीटिंग कॉल किया गया था, to enter as a representatives, and peasants, worker class, they were seethed with turmoil. वो बस बाहर चहलकदमी कर रहे थे, उबल रहे थे, क्योंकि एक तरफ तो क्यू में खड़े होने के बाद उनको खाना नहीं मिल रहा था, प्राइस बढ़ने के बाद भी अवेलेबल नहीं था उनके लिए, दूसरी तरफ उनके मतलब उनकी स्थिति हो गई थी कि काम करने के बाद भी उनके पास अपना कुछ नहीं था। तो वो अब ये रूप में ज्यादा रहना पसंद नहीं कर रहे थे और वो भी डिटरमाइंड थे कि अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि हम अपने आप को जीवित रख सके, अपने राइट्स को, अपने आप को सुरक्षा दे सके। एक तरफ सीवियर विंटर जो था, उससे खेती पूरा चौपट हो चुका था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, प्राइस राइज हो चुका था, उसमें भी शॉप बंद कर दिए जा रहे थे कॉमन पीपल के पहुंचने से पहले ही, क्यों कि खत्म हो चुका है। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स। एट द सेम टाइम द किंग ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. जो वहां की महिलाएं थी, जब शॉपकीपर बंद कर दिया कि नहीं है, तो वो उस पर ही चढ़ाई करने लगी, गुस्से में तोड़फोड़ शुरू किया। दूसरी तरफ किंग भी जो था ऑर्डर कर दिया था कि पेरिस में मार्च करें और वहां पे अपना जो भी एग्रीकल्चर और ये कंट्री साइड में जो भी अनाज का भंडार वगैरह है उसको अपने कब्जे में ले, इसके लिए ऑर्डर
पास कर दिया था और इस तरह का र्यूमर गांव में भी पहुंच चुका था। तो वहां पे भी लोग काफी गुस्से में उबलने लगे कि सारा मेहनत उनका और कोई ले जाएगा। तो उन्होंने भी वहां पे कंट्री साइड का जो उनका अनाज का भंडारा था, जो उनका किला था विलेज एरिया में, उस पर चढ़ाई कर दिए और सभी कुछ तोड़ फोड़ जितना डॉक्यूमेंट था सबको जला दिए, अनाज और ये। तो जो थोड़े बहुत ऑफिशियल थे, र्यूमर वहां तक पहुंच चुका था कि पेरिस से आर्म्ड ग्रुप आ रहा है इन सब पर अपना कब्जा करने के लिए। तो उन लोगों ने, कॉमन पीपल ने वहां चढ़ाई कर दी, सारा कुछ जला दिया डॉक्यूमेंट्स। और तब वहां के लोग जो थे, अपना जो भी नोबेल और एरिस्टोक्रेट ग्रुप था, वो अपना जान बचाकर वहां किसी तरह से भागा। कुछ तो इतना ज्यादा दहशत में थे कि वो देश छोड़कर ही निकल गए। इन द कंट्रीसाइड rumors spread from village to village that lords of a manor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked. चैटॉक्स नाम था वो जो जगह जहां पे अनाज को एकत्रित रखा जाता था, वो किला नुमा स्थान कंट्री साइड का, जहां पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स और वो सबको स्टोर किया जाता था। They looted, hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled, भाग गए वहां से, from their homes, many of them migrating to the neighboring country. वो भी इतने हैवॉक में आ गए थे कि वो आस पड़ोस के देश में भाग गए। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognitions to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by the Constitution. Constituent Assembly ड्राफ्ट कर लिए थे। अब इतना कुछ जनरल पब्लिक सड़क पर आ चुकी थी, शॉप को लूटा जा चुका था, किले को तोड़ फोड़ कर पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कैसे लोग एक एक ईंटा को अलग अलग कर दिए थे। अनाज का जो ग्रेनरी था वहां पर भी अटैक करके उसमें भी लूटपाट मचा लिए थे। तो अब लुईस 16 को और कोई चारा नहीं था इस बात को मानने के लिए कि ठीक है, हम भी निरंकुश नहीं रहेंगे, हमारे ऊपर भी कोई मतलब एक कंट्रोल होगा, चेक होगा, उसके अकॉर्डिंगली कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो इसके पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत होगी, ठीक है ना। फ्यूडलिज्म कंप्लीटली एंड होगा। तो लुईस 16 अब अपना जो भी डिसीजन था उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अनुरूप करने को तैयार हो चुका था। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing feudal system of obligation and taxes. Feudalism का end हो गया। This is the one of the important effect of French Revolution. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. अब जो क्लर्गी ग्रुप था, तुम्हारा कौन सा स्टेट का पार्ट था क्लर्गी? फर्स्ट स्टेट का। उनको भी फोर्स किया गया, बाध्य किया गया रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा कि अपना प्रिविलेजेस जो जो उनको सुविधा दी गई थी एक्स्ट्रा, उसको वो छोड़ें। और देखो ये फोर्स जो किया गया और वो जो अपना सिर्फ सुविधा छोड़े, जो भी एक्स्ट्रा मिला था उसी से एम्प्टी ट्रेजरी जो है वो भरने लगा। इसी एम्प्टी ट्रेजरी के लिए रिवोल्ट हुआ था और थर्ड स्टेट पर टैक्सेस का प्रेशर बढ़ाया गया था। और सिर्फ एक प्रिविलेजेस हटाने के बाद वही एम्प्टी ट्रेजरी में करीब करीब 2 बिलियन लिवर्स, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रेंच करेंसी। तो वो 2 बिलियन लिवर्स सिर्फ जमा हो गया किस बात पर? जब क्लर्गी ग्रुप अपना privileges को छोड़े। This is where abolished, the land owned by church were confiscated. उनका लैंड को सीज कर लिया गया, चर्च को जो ऐसे ही डोनेशन में सरकार, और सरकार नहीं मतलब राजा देती थी डोनेशन में, उन सबको सीज कर लिया गया, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस को सीज कर लिया गया। तब एम्प्टी ट्रेजरी में 2 बिलियन लिवर्स जमा हो गया। France becomes a constitutional monarchy. Now, under the effect of French Revolution, France changes into constitutional monarchy. अभी हम चाह रहे थे कि आप लोग एक क्वेश्चन जो
हमेशा अक्सर पूछा जाता है व्हाट वेयर द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, रोल ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नोट करोगे बेटा, ये क्वेश्चन है क्योंकि मिडिल क्लास का ही इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिख रहे हो? ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सुन रहे हैं या सब सो गए भाई गर्मी में? नो मैम। तो रोल ऑफ मिडिल क्लास, हम कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको बता देते हैं, डायरेक्टली ऐसे बुक में मिले ना मिले, लेकिन आप ये पॉइंट को दिमाग में रख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, The 18th century of France witnessed the emergence of middle class. Justify. The 18th century of France, the 18th century of France witnessed. Spelling बताएं? हाँ? No मैम। No मैम। The 18th century of France witnessed the emergence of middle class. Justify. रोल ऑफ मिडिल क्लास तो क्या है, क्या क्या रोल है भाई? हल्का फुल्का आप लोग नोट कर सकते हैं। दे वेर कंसीडर्ड द चेंज मेकर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स। मिडिल क्लास को क्या नाम दिया गया था? चेंज मेकर्स, ठीक है ना? दे वेर द चेंज मेकर्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट्स। मिडिल क्लास वेर बेसिकली द मेंबर ऑफ विच स्टेट? कौन सा स्टेट? थर्ड स्टेट। And members were considered as the change makers of the third state. It is with the help of or under the influence of middle class, third states had also got some rights. Otherwise, third states were deprived of all rights and were burdened with extra pressure of taxation. Before revolution situation यही था ना, but it is the middle class, their emergence, that changed the conditions of third states by providing them some rights, by reducing the pressure of taxation or burden of taxation from the third states. और क्या है मिडिल क्लास का? दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड एंड बाय मैन्युफैक्चरिंग। दे आर द वेल्थियर पार्ट ऑफ थर्ड स्टेट्स एंड देयर वेल्थ आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट्स। और क्या था? दिस द ग्रुप ऑफ मिडिल क्लास और मिडिल क्लास was against the ideas of monarchy, and that resulted into the complete changes in monarchy system from absolute monarchy to constitutional monarchy based on the ideas of democracy. ठीक है? This group was against the ideas of monarchy. Next है, they give more values to the qualities of people. हाँ बेटा, तो आप लिख नहीं रहे हैं श्रीपति? नहीं लिखोगे तो तुमको बुक में इतना कहाँ से मिलेगा? और इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास अगर आया, रोल ऑफ मिडिल क्लास आया, तो पॉइंट आपके पास होना चाहिए ना, क्या रोल था? they were the educated group of third states. Their ideas was against the monarchical system, and they need complete changes in monarchical system. ठीक है? लिखना शुरू किया श्रीपति? They gave
नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? इट वॉज द मिडिल क्लास दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट to fight against the increasing taxes. मिडिल क्लास के पास हाँ, कहाँ पे लिखी बेटा? It was the middle class that gave a platform to the people. It was the middle class that gave a platform to the people. देखो कुछ कुछ पॉइंट्स तो हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं और बाकी आपको भेजेंगे। क्वेश्चन आंसर, रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है आपका व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है ना? आपको सारा नोट्स व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बट these were the main highlights of the chapter, so you must remember all these facts. That's why some points, some part of society that were repeatedly repeated by me, ठीक है ना? उसको बार बार हम दोहरा रहे हैं, कारण यही है these are the focus of the chapter, ठीक है ना? These are the highlights of the chapter, तो उसको आपको जानना जरूरी है। It was the middle class that gave a platform to the people who were fighting against the increased taxes and food shortages. Middle class gave a platform to the people who were fighting against the increased taxes. कहाँ से हेल्प मिल रहा था? बताए थे ना कि वो लोग थोड़ा सा वेल्दियर ग्रुप था और उनके द्वारा ही इनको सपोर्ट किया जा रहा था, कॉमन पीपल ऑफ थर्ड स्टेट को, ताकि वो इंक्रीज टैक्सेस के खिलाफ और फूड शॉर्टेजेस के खिलाफ सरकार को प्रेशराइज कर सके और अपना डिमांड को मनवा सके। इट वाज द मिडिल क्लास that gave a platform to the people who were fighting against the increased taxes and food shortages. Written or not? Next है the middle class were encouraged by the beliefs of equality and democracy. The middle class were encouraged by the beliefs, BELIEFS, F''S. The middle class were encouraged by the beliefs of equality and democracy proposed by English and French philosopher. They were, इनका आइडियाज जो था, इनको इंकरेजमेंट कहाँ से मिल रहा था? फ्रेंच और इंग्लिश फिलोसफर और थिंकर्स जो थे, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज को बताते थे, हाईलाइट करते थे, राइट्स ऑफ पीपल के बारे में एक्सप्लेन करते थे, उनके आइडियाज से ये इंकरेजमेंट लेकर फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्होंने किया, ठीक है ना? They were encouraged by the beliefs of equality and democracy propagated या proposed by English and French philosopher. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, these beliefs helps spread among the people. These beliefs, ये सारा कौन सा पॉइंट रिपीट करें ज्योति? When the middle class were encouraged. हाँ, encouraged मतलब कि उत्साह, कैसे उत्साहित हुए थे? कौन उनको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था? फ्रेंच एंड इंग्लिश फिलोसफर. The middle class were encouraged by the beliefs of equality and democracy propagated by English and French philosopher. English and French philosopher. Propagated by English and French philosopher. Yes, ma'am, done. These beliefs spread among the people. अब ये चूंकि ये encouraged थे,
ये पढ़ा लिखा वर्ग था, वो ये सारे आइडियाज को जानने और समझने लगे, तो यही सारे आइडियाज को वो कॉमन पीपल के बीच में भी शेयर किए, कॉमन पीपल के बीच में भी स्प्रेड किए कि देखो क्या है राइट, जब हम कहीं किसी देश में हैं, रह रहे हैं, जीवित हैं, तो ये राइट्स हमारा एक मतलब अधिकार है, ताकि हम कॉमनली एक अच्छा लाइफ लीड कर सकें। These beliefs spread among the people as a consequence of intense conversation and discussions. These ideas were spread, ऐसे लिखो, belief छोड़ो, these ideas were spread among common people through discussions and conversation, बातचीत, discussion, speeches, ये सब के थ्रू ये सारा आइडिया जो था कॉमन पीपल के बीच में भी गया। These ideas were spread among common people of third state through discussion, conversation, speeches, and provide encouragement for revolution. All these features of middle class, all these actions of middle class lead to the outbreak of revolution. All these actions of middle class led to the outbreak of revolution. अब outbreak of revolution कैसे कैसे हुआ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कैसे कंपेल्ड था लुइस 16 कि अपना आर्मी का, अपना स्टेट का और अपना जो खर्चा था उसको कैसे फुलफिल करे, खजाना तो खाली हो चुका था, इसके लिए उसका दिमाग में आया कि क्यों ना थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए, और टैक्स बढ़ाने के लिए उसने वो अकेले इस पर डिसीजन नहीं ले सकता था, इसके लिए उसको तीनों स्टेट का सहमति चाहिए होता था, यानी कि वोटिंग कराता जिसमें ज्यादा वोट आते, और इसके लिए उसने एक मीटिंग स्टेट जनरल में मीटिंग कॉल किया जहां पर तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए, और इसमें से थर्ड स्टेट जो है वो रिफ्यूज कर दिया उसकी बात को मानने के लिए, वॉकआउट किया और रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। ओके, सो इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पोर्शन, अप टू दिस डॉट पोर्शन, देन प्लीज आस्क। अगर इतना तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, हो गया। अब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग पढ़ाएंगे फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो मेनी इंपॉर्टेंट डेट्स आर देयर, जैसे कि सबसे पहला मीटिंग जो था वो कब था, 1614 में किया गया था। उसके बाद आपका मीटिंग 5 मई 1789 में शुरू किया गया, और इसी 5 मई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ। कैसे? थर्ड स्टेट वॉकआउट किया असेंबली से। उसके बाद ये रेवोल्यूशन सिर्फ वहां तक और टेनिस कोर्ट तक और वहीं तक नहीं फैला रहा, बल्कि कंट्री साइड में भी स्प्रेड हुआ, वहां पे भी तोड़ फोड़, लूट